Hello guys, I am Hitesh Tripathi and in this video we are going to discuss editorial of this lead code problem, count number of texts. Okay, so prerequisites for this are dynamic programming, basic dynamic programming तुम्हें आनी चाहिए, ठीक है? And this problem is from weekly contest 292. Okay, so before discussing this problem, let me just tell you some things about Newton School. So basically, as we all know, Newton School is an e-learning platform जिसके पास तुम्हारे लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, ठीक है? उनका मोस्ट अमेजिंग प्रोग्राम जो है वो है उनका पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम, एज द नेम सजेस्ट, और इंट्रोड्यूस दैट पे आफ्टर प्लेसमेंट. सो यू डोंट नीड टू पे व्हेन अ सिंगल पेनी अंटिल एंड अनलेस तुम किसी भी कंपनी में प्लेस नहीं हो जाते. अब व्हाट्स द रोल ऑफ न्यूटन स्कूल इन दिस? Like they will train you as a full stack developer, and not only this, after that they will get you referrals or they will arrange you interviews in with different companies which they have tie up with. Okay, and a minimum CTC you will go for is 5 lakh. Okay, तो जब भी तुम 5 LPA CTC से ऊपर या 5 LPA पे प्लेस हो जाते हो, only then you need to pay to Newton School. Now if you want to know more about their program, pay after placement program, you can just go to the link in description. ठीक है, तुम्हें वहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मिल जाएंगी अगर तुम्हें फॉलो अप चाहिए. इन द एंड आफ्टर दिस, अगर तुमने अभी तक यूट्यूब चैनल कोडिंग टॉकीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया, ओके, जस्ट गो टू यूट्यूब, सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल वेयर आई एम पोस्टिंग रेगुलर वीडियोज़ फॉर यू सो दैट यू कैन गेट रेगुलर एडिटोरियल वीडियोज़ एंड डिफरेंट प्रॉब्लम्स which you have or different questions which you face in your daily life. ठीक है, just go and subscribe. Also like this video and share this to your friends. So let's just read the problem first. Count number of texts. Alice is texting Bob using her phone. The mapping of digits is to letter is shown in the following. This is from a QWERTY phone. If you have used in like 10 years ago, we had QWERTY phone, and in that we used to type text messages using this format. Okay, if you will read the question you will get it. Like if we want to type A, we should have pressed 2 only once. If we want to type B, we should have pressed 2 twice. If we want to type C, we should have pressed 2 thrice. Okay, in the same way, if we want to like press 7, if we want to like type R, PQRS, suppose 7 have words PQRS. Okay, and if we want to type R, we need to press 7 thrice. Okay, so let's just read the statement now. In order to add a letter, Alice has to press the key of corresponding digit ith times. Okay, where I is the position of the letter in the key. That's right, I have already explained you this. Okay, now given a string, pressed keys representing the string received by Bob return the total number of possible text messages Alice could have sent. Okay, so what question is saying is, suppose you have this string. Okay, now there are 2 2's, then 3 6 and 2 2's. Okay, there may be a possibility that this text message, or let me just write it here. Here it is 2 2's, 3 6, 2 2's. Okay, or if I just explain you in test case. Okay, so this is your pressed keys string and you need to tell total number of possible text messages. Okay, so there may be a possibility that using these 2's, ठीक है, 2 2 2, suppose you press 2 once and you get a A. Okay, then again you press 2 once and you get a A again, then again 1, then you get a A again. ठीक है, अब there may be a possibility that first 2 is corresponding to a B in this case. Okay, and the last 2 is corresponding to A. Okay, so I hope तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कैसे तुम इस स्ट्रिंग से डिफरेंट टेक्स्ट मैसेजेस बना सकते हो. कैसे? अब मेरे पास स्टार्टिंग में ऑब्वियसली सबसे पहली चीज़ क्या कि मेरे पास जो भी स्ट्रिंग है, ठीक है, सपोज़ मेरे पास ये स्ट्रिंग है, तो इसमें से ये जो 2's हैं ये एक साथ वर्क कर रहे होंगे. एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैं 2 2 अलग अलग बनूं और एक पॉसिबिलिटी कि 2 एक साथ बना दूं. ठीक है, फिर ये 3 6 एक साथ काम कर रहे होंगे, फिर ये 2 एक साथ काम कर रहे होंगे. दैट्स फाइन, ये अंडरस्टूड था. ठीक है, अब बात क्या हो रही है कि ये 3 2's में हो सकता है कि मैं एक बार प्रेस करूँ तो मुझे ए मिले,
हो सकता है कि इन 3 2s को मैं ऐसे प्रेस करूं, मेरे पास 3 2s हैं, मैं इनको 2 2 प्रेस करूं तो मुझे एक B मिलेगा, फिर 2 अकेला प्रेस करूं तो एक A मिलेगा। एक पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं 2 को अकेला प्रेस करूं तो A मिलेगा, फिर उसके बाद 2 2 एक साथ प्रेस कर दूं तो B मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ से तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा कि इस स्ट्रिंग से डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक मैसेज ये हो सकता है, एक मैसेज ये हो सकता है, एक मैसेज ये हो सकता है। ठीक है, राइट। तो ये तो हो गई पहले 3 2s की बात। अब इसके आगे 2 6 भी बने, राइट। तो 2 6 से क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं, या तो मैं 6 से पहले हम देख लेते हैं कि बन क्या रहा है एग्जैक्टली टेक्स्ट। ठीक है, तो 6 से MNO है, राइट। तो हो सकता है मैं 6 6 अकेले अकेले प्रेस करूं तो एक पॉसिबिलिटी M हो सकता है एक साथ प्रेस करूं तो N। अब टोटल टेक्स्ट मैसेजेस कितने बन सकते हैं, लेट्स सी दैट AAMM AAN ABMM ABN एंड BAMM BAN। ठीक है, तो इस तरह से मेरे टेक्स्ट मैसेजेस निकल सकते हैं। नाउ क्वेश्चन हम लोगों को पूरा समझ में आ गया। अब ये भी चीज़ हमें समझ में आ गई कि हमें सेम डिजिट्स एक साथ प्रोसेस करने, राइट। नाउ why in the beginning of the video I told you that this question is of deep why। तो let's just see, सपोज मेरे पास एक प्रेस्ड स्ट्रिंग थी, ठीक है, और मैं किसी ith कैरेक्टर पे हूँ, ओके। अब दिस कैन बी 6 2 5 7 8 9 कुछ भी हो सकता है, राइट। अब बात क्या हो रही है यहाँ पे कि सपोज देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे राइट नाउ 1 सेकेंड मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ, साथ में बोलता भी जा रहा हूँ। ठीक है, मैं ith कैरेक्टर पे हूँ, ठीक है, एंड सपोज इन दैट इंडेक्स यू हैव अ 6 फॉर नाउ। ठीक है, ये तुम्हारी स्ट्रिंग है एंड ये तुम्हारा ith इंडेक्स है, एंड लेट्स जस्ट से यहाँ पे अभी तुम्हारे पास 6 है। अब एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि यहाँ पे भी तुम्हारा 6 हो और यहाँ पे भी तुम्हारा 6 हो। ठीक है, फाइन। इन दिस केस तुम कर क्या सकते हो, या तो इस ith कैरेक्टर को सिंगल बार प्रेस कर सकते हो। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी होगी कि तुमने 6 को अकेले यूज़ किया। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी होगी कि तुमने 6 को इस 6 के साथ यूज़ किया। ठीक है, दैट इज़ i-1th कैरेक्टर के साथ। तो मैं यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ लिखता हूँ। एक पॉसिबिलिटी है तुमने खाली ith कैरेक्टर यूज़ किया, दूसरी i-1 और ith एक साथ यूज़ किया, तीसरी हो सकती है कि तुमने ये भी यूज़ किया, राइट, i-2 i-1 एंड ith कैरेक्टर यूज़ किया, राइट, फाइन। अब यहाँ पे सिंस 3 6 है, राइट, तो तुमने खाली 3 बार 6 को प्रेस कर सकते हो। ठीक है, वाई, यहाँ पे देखना, क्योंकि तुम मैक्सिमम 3 टाइम से 6 को प्रेस कर सकते हो। ठीक, तो तुम्हें O मिल जाएगा। O से 4 टाइम्स प्रेस करने में कोई मतलब है उसका नहीं है ऑब्वियसली, बट इन द केस ऑफ 7 एंड 9 इफ़ यू सी, ठीक है, 7 और 9 जो तुम्हारी ये 3 टाइम्स वाली चीज़ है ये 4 टाइम्स हो जाएगी। वाई, क्योंकि 7 में एग्जैक्टली होता क्या है, PQRS। ओके, तो तुम सिंगल टाइम प्रेस करोगे तो P, ट्वाइस में Q, देन R, देन S। ओके, तो इफ़ यहाँ पे 7 होता इन केस, ठीक है, तो मैं ये भी देखता कि क्या 7 4 बार भी पुश हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे अगर 7 होता, ये भी 7, ये भी 7, तो मैं i- इसके साथ भी ले सकता था, i-3 i-2 i-1 एंड I। मैं 4 कैरेक्टर एक साथ प्रेस कर सकता था। ठीक है, तो मैं इस 7 को इसके साथ भी कंक्लूड कर सकता था। फाइन, तो इतनी चीज़ें हमें अभी तक समझ में आ गई। मैंने अभी कोई भी सॉल्यूशन डिस्कस नहीं किया है, सिर्फ चीज़ें समझा रहा हूँ तुम लोगों को। ठीक है, कि कैसे हम सॉल्यूशन बिल्ड करने वाले हैं। अब मैं ith कैरेक्टर का आंसर निकालने वाला हूँ राइट नाउ। ठीक है, ith कैरेक्टर का आंसर निकालने के लिए ऑब्वियसली सिंस वी आर यूजिंग DP, तो ith कैरेक्टर जो होगा या फिर ith कैरेक्टर का जो DP ऑफ I होगी, ठीक है, वो किसी प्रीवियस स्टेट में डिपेंडेंट होनी चाहिए, राइट, जब भी हम एक DP सॉल्यूशन बिल्ड कर पाएंगे, राइट। तो कैसे डिपेंडेंट है ये देखते हैं।
सपोज ये ith कैरेक्टर है, ठीक है, मैं इसका आंसर निकालने वाला हूँ। दैट मीन्स मेरे पास प्रीवियस सारी स्टेट्स का आंसर है, ठीक है। वेयर dp ऑफ i यू कैन से इज टेलिंग मी टोटल नंबर ऑफ वेज व्हेन आई हैव ऑलरेडी प्रोसेस्ड i-1 तक की स्ट्रिंग, राइट। अब मैं ith का भी आंसर निकालने वाला हूँ, तो मुझे क्या चाहिए, i-1 तक का सारा आंसर ऑलरेडी चाहिए, ठीक है। तो मैं dp ऑफ i निकालने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ वेज व्हेन आई हैव ऑलरेडी प्रोसेस्ड स्ट्रिंग ऑफ प्रीफिक्स i-1 लेंथ, ठीक है, फाइन। ध्यान से सुनते रहना, बस सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब मेरे पास dp i-1 भी ऑलरेडी है, i-2 भी ऑलरेडी, i-3 सारी चीज़ें हैं ऑलरेडी, ठीक है। सपोज अब मैंने इसके पहले जस्ट क्या बताया था कि हो सकता है कि ये जो ith कैरेक्टर है वो मैं i-1th कैरेक्टर के साथ ले रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो dp ऑफ i हो सकता है कि ये कैरेक्टर इक्वल हो या ना हो, ठीक है। यहाँ पे 6 है तो हो सकता है यहाँ पे 5 हो, या फिर यहाँ पे 4 हो, या फिर यहाँ पे 6 हो, ठीक है, डजेंट मैटर। बट सारी की सारी जो स्ट्रिंग्स है यहाँ तक बनेंगी। सपोज यहाँ तक की स्ट्रिंग प्रोसेस करने के बाद मेरे पास डिफरेंट स्ट्रिंग्स बन रही हैं ए बी, ठीक है। और यहाँ पे जो ith कैरेक्टर है वो है तुम्हारा 6, और यू कैन से m, 6 इज करेस्पॉन्डिंग टू m, राइट। तो वो इसके साथ भी बनाएगी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, ठीक है। तो अगर dp ऑफ i की इनिशियल वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, dp ऑफ i-1, राइट, फाइन। क्योंकि यहाँ पे 6 के साथ टोटल 3, ये dp ऑफ i-1 है, राइट, ठीक है। थोड़ा सा टफ सॉल्यूशन है, बट आई होप तुम्हें इन द एंड ऑफ द वीडियो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है, फाइन। तो सबसे पहली चीज़ तो तुम्हारी ये होगी कि हर बार डजेंट मैटर तुम्हारा i-1 कैरेक्टर इक्वल है या नहीं, जो dp ऑफ i है वो तुम्हारी dp ऑफ i-1 के इक्वल हो जाएगी। वाई? बिकॉज क्योंकि जो प्रीवियस बिल्ड स्ट्रिंग्स हैं वो सारी की सारी करेंट कैरेक्टर के साथ तो बनने ही वाली, राइट। अब तुम्हें क्या देखना है, इफ़ अब तुम्हारी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं। इफ़ यहाँ पे 6 है, ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी है कि तुम इसको अकेले लो, अकेले वाली चीज़ तुमने कर ली। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि तुम इसको इसके साथ में लो, ठीक है। अगर इन दोनों को साथ में ले रहे हो, राइट, तो तुम्हारा जो आंसर है वो कैसे होगा। अब तुम्हारी dp ऑफ i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dp ऑफ i की प्रीवियस वैल्यू प्लस जो सारी यहाँ पे स्ट्रिंग्स बन रही थी, राइट। मैं अब कह रहा हूँ एग्जैक्टली ध्यान से सुनना। जो सारी स्ट्रिंग्स यहाँ तक बन रही थी, दैट इज़ i-2th स्टेट तक, कैन बी a b a c a d a। अब वो सारी की सारी स्ट्रिंग्स इन 6 को मैं साथ में ले रहा हूँ, तो वो n है, वो इसके साथ बनाएंगी, राइट। तो यहाँ पे dp ऑफ i में क्या ऐड करना पड़ेगा हमें, dp ऑफ i-2, राइट। अब एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है दैट मैं ये 6 और यहाँ पे भी 6 है, ठीक है, तो मैं इन तीनों 6 को एक साथ ले रहा हूँ। इन दैट केस dp ऑफ i में क्या ऐड हो जाएगा, dp ऑफ i प्लस यहाँ तक की जो सारी स्ट्रिंग्स होंगी वो सारी भी इसके साथ बनाएंगी, राइट। दैट इज़ इस स्ट्रिंग के साथ अब वो सारी स्ट्रिंग्स भी स्ट्रिंग बनाएंगी, एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन। तो dp ऑफ i-2, i-3, ठीक है, जो भी इंडेक्स तक तुम चेक कर सकते हो। अगर ये 7 या 9 है, इट मीन्स मुझे i-3 तक चेक करना है। अगर ये अदर कोई नंबर है तो dp ऑफ i-2 तक चेक करना है, ठीक है। मैं सबसे पहले चेक करूँगा दैट इफ़ ये कैरेक्टर इसके इक्वल है, इफ़ येस, तो मैं ये वाली स्ट्रिंग्स को अपने dp ऑफ i में ऐड कर दूँ, राइट। तो ये एक कंक्लूजन था। अब एंड में मुझे सारे आंसर को मॉडुलो भी लेना है, तो उसके लिए भी मैंने इंतज़ाम कर दिया होगा ऑब्वियसली। लेट मी शो यू द कोड नाउ, यू विल गेट इट ईजली। मैंने एक मॉड ले लिया, ठीक है, और एक ऐड फंक्शन बना लिया जहाँ पे मैं x और y को ऐड करके उनका मॉडलो दूंगा। अब मैंने फंक्शन के अंदर आया, मैंने n में स्ट्रिंग की लेंथ ले ली और dp जो बनाई है मैंने वो n+1th लेंथ की बनाई है। वाई? क्योंकि इससे मेरे पास nth इंडेक्स में क्या होगा, n-ith इंडेक्स तक की सारी
कॉम्बिनेशंस, ठीक है, जो कि मुझे चाहिए 0 इंडेक्स से n-1th इंडेक्स तक के सारे कॉम्बिनेशन चाहिए, ठीक है, फाइन। अब dp0 को मैं कैसे इनिशियलाइज कर दूंगा, 1 से ऑब्वियसली, क्योंकि एक सिंगल कैरेक्टर है, उसकी टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट स्ट्रिंग्स अप टू 0th इंडेक्स विल बी 1, राइट। अब 1 से लेके मैंने कहाँ तक इटरेट किया, ध्यान से देखो, लेट मी जस्ट जूम इट, ठीक है, 1 से लेके मैंने इटरेट किया अप टू n तक, क्योंकि मुझे dp ऑफ n भी अपडेट करना है, ठीक। तो dp ऑफ, सबसे पहले dp ऑफ i तो मैं कैसे अपडेट कर दूंगा, dp ऑफ i-1, क्योंकि सारी की सारी स्ट्रिंग्स जो i-1th स्ट्रिंग इंडेक्स तक बनी हुई हैं वो ith इंडेक्स पे भी बन जाएंगी, ठीक है, जब मैं ith इंडेक्स को अकेला लेने वाला हूँ, राइट, फाइन। तो यहाँ पे मेरी dp ऑफ n भी अपडेट हो जाएगा, ध्यान से देखोगे अगर तुम, ठीक है, सारी की सारी स्ट्रिंग्स जो n-1th इंडेक्स तक बनेंगी वो सारी dp ऑफ n में आ जाएंगी ऑलरेडी, राइट। नाउ आई विल सिंपली चेक इफ़ i-2 इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है, मैं ये चेक कर रहा हूँ कि जब मैं जो करंट इंडेक्स i है उसको मैं i-1th इंडेक्स के साथ इंक्लूड कर दूँ अगर, तो मैं चेक कर रहा हूँ i-2 इज़ ग्रेटर देन 0 एंड s ऑफ i-2 इज इक्वल्स टू s ऑफ i-1। अब यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, मैं i-1 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं एक इंडेक्स आगे चल रहा हूँ, ठीक है, तो जब मैं n-1th इंडेक्स एक्सेस करूँगा तो उसके लिए मुझे i-1 लेना पड़ेगा। तो मैं बेसिकली i-1th इंडेक्स को अपना करेंट इंडेक्स मान रहा हूँ, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। अब मैं अगर i-1th इंडेक्स को अपने प्रीवियस इंडेक्स के साथ इंक्लूड कर लूँ, ऑब्वियसली जब वो इक्वल है तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा dp ऑफ i में, dp ऑफ i-2 ऑब्वियसली, ठीक है। और जब मैंने ये कर लिया तो मैं सिंपली चेक कर लूँगा उसी इफ़ के अंदर, इफ़ जो उसके जस्ट पहले वाला कैरेक्टर i-3 वो भी क्या मेरे i-2 के इक्वल है, अगर है तो मैं सिंपली i-3 भी ऐड कर दूंगा, क्योंकि अब वो वाली स्ट्रिंग्स भी मेरी, ये जो मैंने पेयर किया एक 3 का सेट, उसके साथ स्ट्रिंग बनाएंगी, ठीक है। उसके बाद मुझे i-4 देखना पड़ेगा ग्रेटर देन 0, और क्या फोर्थ वाला कैरेक्टर भी इक्वल है, अगर है ऑब्वियसली तो मैं सिंपली चेक करूँगा कि वो 7 और 9 तो नहीं है, क्योंकि अगर 7 और 9 है जब भी वो एक मुझे डिफरेंट कॉम्बिनेशन दे पाएगा, अगर 7 और 9 नहीं है इट मीन्स कि वो 3 के सेट से ऊपर 4 का सेट बना ही नहीं सकता, ठीक है। अगर 7 और 9 है इन दैट केस तुम dp ऑफ i में सिंपली dp ऑफ i-4 भी ऐड कर दोगे एंड इन द एंड तुम dp ऑफ n रिटर्न कर दोगे, ठीक है, जहाँ पे dp ऑफ n में ऑब्वियसली क्या होगा, dp ऑफ n-1, ठीक है। So thank you guys for watching this video. If you still have any doubt in this question, you can ask me in comment section always. You know that already. In the end, अगर तुमने अभी तक न्यूटन स्कूल चेक नहीं किया, just go check न्यूटन स्कूल पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम. And if you haven't subscribed this Coding Talkies YouTube channel, just go and subscribe this YouTube channel. Thank you guys for watching.